हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर और कहाँ से आपका ग्रोथ और कहाँ तक आपने क्या क्या एक्सपीरियंसेस किस फील्ड में लिए, कौन से लेवल पे आप किस प्रोफेशंस में और किस कंपनीज में काम किया, किस प्रोफाइल्स में काम किया. सो इफ यू कैन पुट सम आइडिया एंड लाइट ऑन दैट. See, I started my career in full time from the 1987. College time, I was driving the rickshaw. But how rickshaw was driving, there was a one reel come for the film. And 3-4 थिएटर में वो फिल्म लगती थी. तो वो फिल्म हम लोग सेटलिंग करते थे, उसको सेटलिंग बोलते थे. तो जैसा 12 का शो एक थिएटर पे है, दूसरे थिएटर पे 12:30 का शो था, तीसरे थिएटर पे 1 बजे का था. सो देयर वाज अ हाफ एन आवर गैप. सो विद इन अ 15 minutes दैट रील विल फिनिश एंड दैट रील वी हैव टू कैरी फ्रॉम द वन सिनेमा थिएटर टू गिव इट टू द अनदर सिनेमा थिएटर. ही टुक मी एटलीस्ट 4 sitting फॉर द इंटरव्यू. एक इंटरव्यू लेता था. हाँ, एक इंटरव्यू लेता था, बोलता था यू कम आफ्टर 2 days. मैंने मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा होगा. फेलो टेकवानी करके हमारा सिलसिला में था, उसने 4 टाइम में मेरा पार्टनर इंटरव्यू लिया. यू आर ऑल्सो टेस्टिंग द पेशेंस, द टेस्टिंग द बोलते ना जो भूख होती है, जो कैंडिडेट में जॉब की भूख कितनी है, करेक्ट, उसमें पेशेंस कितना है फॉर टेकिंग अप अ न्यू जॉब. मतलब इरिटेट आज के जनरेशन में, मतलब एक बार इंटरव्यू में आने के लिए भी वो बैकग्राउंड से कुछ नहीं. यू आर अ गुड लिसनर. तो हमारे वाटर प्रूफिंग में सबसे बड़ा वही चीज है कि सामने वाले का प्रॉब्लम समझना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेगा, वाटर प्रूफिंग एक ऐसा चीज है कि सामने वाले को सोल्यूशन नहीं मिलेगा. Hi. So this is the 5th episode of Problems of Waterproofing, but थोड़ा सा twist है इस episode में. Rather than connecting with the consumers or clients or contractors अभी तक जो हम videos में लेके आ रहे थे and talking about the waterproofing के problems. So instead of that, we will be also talking about problems of waterproofing. But before that, we would like to welcome Mr. Cletus Koleko, who have just joined our board of Kabu World as a team. And we will also know more in detail about him, his experience, his past life experience in professional career, and how would his experience would help in growing Kabu further. And what does he think about the business of waterproofing market? That's what he might have thought, and also accepted the offer of joining the team Kabu. Yeah. So let's welcome Mr. Cletus Koleko, and sir, welcome. Yeah. Thank you, Jigar. First, I would like to share with our audience about your experience, your career, your how did you start your career, और कहाँ से आपका ग्रोथ और कहाँ तक आपने क्या क्या एक्सपीरियंसेस किस फील्ड में लिए, कौन से लेवल पे आप किस प्रोफेशंस में और किस कंपनीज में काम किया, किस प्रोफाइल्स में काम किया. सो इफ यू कैन पुट सम आइडिया एंड लाइट ऑन दैट. डेफिनेटली जिगर भाई. See, I started my career in full time from the 1987. But if you look, my career started at the age of 10. जब मैं 5th standard में था, from that years, my career is started. So my career is like that. I started as a job, part-time job after the school as a compounder. So that time, that time I am getting the salary of 50 rupees per month for the 1 hour compounder or the family doctor. So that was a school time. Then after school time, yes, on the college time, I was driving the rickshaw. But how rickshaw was driving, there was a one reel come for the film. And 3-4 थिएटर में वो फिल्म लगती थी. तो वो फिल्म हम लोग सेटलिंग करते थे, उसको सेटलिंग बोलते थे. तो जैसा 12 का शो एक थिएटर पे है, दूसरे थिएटर पे 12:30 का शो था, और तीसरे थिएटर पे 1 बजे का था. So there was a half an hour gap. So within a 15 minutes that reel will finish. And that reel we have to carry from the one cinema theater to give it to the another cinema theater. So that was calling the settling. So I was there and I was driving the rickshaw with that settling for the rails for theaters. So वो college time का था. I completed my graduation in 87. 87 में जब मैं graduation complete किया, then I joined as a part time in the Air India. So that was a contract basis. So they take 3 months contract basis as an employee, and I was as a storekeeper. That time I was getting good, fantastic salary. Of that time was 1,800. So 1,800 rupees was a huge amount that time.
बिकॉज इन कैंटीन एंड ऑल दिस आपको मालूम होगा वो सब्सिडाइज खाना रहता था. तो वी वर गेटिंग एट 5 पैसा 10 पैसा गुड फूड एज अ मील, लंच बोलो या डिनर बोलो. So that was a started career my, and then I joined Asmaco Plastic Pipe Private Limited in 1987 as a clerical clerk. So that time I was just filling the checks, going to the bank, depositing checks and ledger accounts and all this thing. I was looking for the parties or the customers. Then there was one sales manager called Gibran. That fellow is from Goa. So he looked me, he said, you are looking very handsome, very passionate, and why are you doing this clerical job? So I said, I am not knowing any sales because I have not done earlier sales. I just came from the Air India as a storekeeper and then I joined here as a clerical clerk. तो बोलता यार सब छोड़ दिए, ये काम तेरा नहीं है, ये सब चेक डिपॉजिट करना, चेक भरना वगैरह. You come to the sales. So I said, okay, you can teach me, then definitely I will do. So that time we were manufacturing the nylon braided pipes, Teflon tapes and self-adhesive Teflon tapes and BOPP tapes, that box packing, जो कार्टून के पैकिंग के लिए आते थे ना, वो हम लोग बनाते थे. And he said, okay, you come, we will start. तो फिर वो टाइम से मैं सेल्स में आ गया. तो उन्होंने मेरे को सेल्स कैसा करने का, हाउ टू स्पीक विद द कस्टमर, हाउ टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, वो सब सिखा दिया मेरे को. एंड आई वॉज ट्रैवलिंग एंड दैट टाइम वी वर ट्रैवलिंग ह्यूज. मतलब हम लोग को लॉजिंग बोर्डिंग का एकदम नॉमिनल अमाउंट देते थे, ट्रैवलिंग भी एकदम नॉमिनल, एसटी से जाओ ट्रेन से जाओ, कैसे भी करके पहुंच जाओ. ट्रांसपोर्टेशन भी उतना आज के ज़माने में करेक्ट. वो लाल बस, मतलब एसटी बस में हम लोग ट्रैवल करते थे. ओके, महाराष्ट्र में, देन कर्नाटका जाते था मैं, यूपी जाता था मैं. तो साउथ से हम लोग को ये जो प्रोडक्ट थे उसमें ऑर्डर्स अच्छे आते थे. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंपटीशन बिटवीन ऑल द सेल्स पीपल एंड आई वाज जस्ट फ्रेश. तो मुझे अच्छे अच्छे ऑर्डर आने लगे. तो ऑल पीपल वर आस्किंग मी हाउ यू आर गेटिंग दिस ऑर्डर. तो मुझे तो नॉलेज नहीं था प्रोडक्ट का, बट आई वाज टॉकिंग विद द कस्टमर, उनके लिए टाइम देता था मैं, उनका अच्छा खासा, मैं आई एम अ गुड लिसनर, सो मैं अच्छा खासा उनका सुन लेता था और उनको सॉल्यूशन बताते थे कि भाई ये अगर आप यूज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. तो दैट टाइम आई वाज गेटिंग गुड ऑर्डर्स. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंपटीशन बिटवीन अस इन द सेल्स पीपल. So that was one part of the Asmaco Plastic Pipe Private Limited. From looking at Asmaco Plastic Pipe, I was traveling in the train that time, from my home to the office. So one person was there with me who was working in Polyset Plastic Limited, Andheri. So he told me, अरे यार तू Asmaco Plastic Pipe छोटे कंपनी में क्यों काम कर रहा है? तू Polyset Plastic Industries में आ, we are manufacturing the chairs, फर्नीचर पूरा बनाते, टेबल्स बनाते, वो तू बेचना, ये पाइप वगैरह क्यों बेच रहा है? अभी हर एक आदमी का जो कंपनी में जो है वही हम लोग बेचेंगे. सो देन ही से यू कम टू फॉर इंटरव्यू. देन आई से ओके फाइन, आई विल कम फॉर इंटरव्यू. So I went to the interview. So that Polyset Plastic Industries, there was a Mr. Tegwani. He was a sales manager. He took me at least 4 sitting for the interview. एक इंटरव्यू लेता था, हाँ एक इंटरव्यू लेता था, बोलता था यू कम आफ्टर 2 days. मैंने मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा होगा. द फेलो टेकवानी करके हमारा सेल्स मैनेजर था, उसने 4 टाइम में मेरा पार्ट में इंटरव्यू लिया. फर्स्ट पार्ट में उसने मेरे फैमिली के बारे में पूछा. सेकेंड में उसने मेरे को पूछा कि तेरा हॉबीज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट यू वांटेड टू बिकम डाउन द लाइन. थर्ड में उसने मेरे कंपनी के बारे में पूछा, तू कंपनी में जो काम कर रहा था वो क्या कर रहा है. और फोर्थ में मेरे कंपनी के लिए तू क्या कर सकता है. ऐसे 4 पार्ट में क्या. अरे दैट वाज अ ब्यूटीफुल इंटरव्यू जिगर, वेरी गुड इंटरव्यूज. बिकॉज मेरे को सोचने के लिए भी वो 2 दिन देता था और मैं भी टेंशन में रहता था, अरे अभी 2 दिन के बाद में जाके क्या और पूछने वाला. ये सीधा पूछ ले बाबा तेरे को क्या क्या आता है क्या नहीं, एंड लाइक दैट यू कैन टेक ए इंटरव्यू. नॉर्मली द पीपल टेक दैट, बट ही वॉज वेरी सिस्टमेटिक. आफ्टर आई केम टू नो क्या उसको जाना था और मेरे को उसकी चेयर पे उसको बनाना था. अच्छा. So that was his idea. So he wanted the successor. So that wise he was taking so time to select me. फिर मैंने जैसा ज्वाइन किया वो 6 महीने में चला गया, and then I took over his job like that. So that was very good. तो
मतलब ये एक्सपीरियंस जो बता रहे हो ना, उससे ये भी समझ आता है कि आज के जमाने में भी कोई ऐसा हार्डली कोई होगा जो इस प्रकार से इंटरव्यू इसमें देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो के यू आर आल्सो टेस्टिंग द पेशेंस, द टेस्टिंग द बोलते ना जो भूख होती है, जो कैंडिडेट में जॉब की भूख कितनी है, करेक्ट उसमें पेशेंस कितना है फॉर टेकिंग अप अ न्यू जॉब। मतलब इरिटेट आज के जनरेशन में, मतलब एक बार इंटरव्यू में आने के लिए भी वो बैकग्राउंड चेक कुछ नहीं ऐसे ही आ जाते हैं। करेक्ट। तो उस जमाने में भी अगर ऐसे लोग अगर करते थे तो देन इट इज रियली एक्सीलेंट। दूसरा आपने जो चीजें बोली उसमें और एक चीज मेरे को ध्यान में आई कि वो एक चीज आई गेस इट वुड रियली हेल्प काबू टू ग्रो। आपने बोला आप सेल्समैन में जब सेल्स में आए तो कस्टमर्स के पास आप लिसनिंग पावर और आप यू आर अ गुड लिसनर। तो हमारे वाटर प्रूफिंग में सबसे बड़ा वही चीज है कि सामने वाले का प्रॉब्लम समझना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेगा, वाटर प्रूफिंग एक ऐसा चीज है कि सामने वाले को सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और आवर कंपनीज प्रायोरिटी इज टू गिव सोल्यूशन एंड नॉट सेल द प्रोडक्ट। दैट इज आवर मोटिव इन दिस काबू। जो दूसरी कंपनियां का, हर एक कंपनी का अपना अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग है, वे ऑफ वर्किंग। So your that thing and giving a solution, understanding, that is very good. कि वो एक चीज हमको भी आपसे और सीखने मिलेगी। Correct. Then I joined 1997 in Gulf Oil. So Gulf Oil का भी story 97, yeah. So if you look my story, 28 years. 28 years I completed. So I started my career in Nasik. When I joined in 97, they sent me in the Nasik as a sales executive post because there was a lot of pressure for the business and all this thing. So when we joined there Gulf Oil ना, अब Gulf Oil का भी आप स्टोरी सुनेंगे तो you will see अजीब लगेगा कि Gulf Oil में हम लोग ज्वाइन किए जब 97 में। तो वो टाइम भी मेरे को उन्होंने बॉम्बे नहीं रखा, उन्होंने बोला कि आपको नासिक जाना पड़ेगा। एंड दैट वाज माय फर्स्ट जॉब टू गोइंग आउट, मतलब वहां पे जाके रहने का और वहां पे ये काम करने का। क्योंकि अभी तक तो मैं बॉम्बे में रह के, वसीम में रह के बॉम्बे के कंपनीज में काम करता था एंड ट्रैवलिंग करता था, टूर करता था। बट नाउ आई हैव टू गो कंप्लीटली टू स्टे आउटसाइड द मुंबई और आउटसाइड द वसई। सो आई से ओके फाइन, आई विल टेक चैलेंज बिकॉज मुझे कुछ बनाने को तो आता ही नहीं था। खाना कैसा बनाएगा, चाय कैसा बनाएगा, आई वॉज नॉट अवेयर। सो आई टुक देयर फ्लैट ऑन रेंट एंड देन आई स्टार्टेड माई करियर विद द फुल टाइम प्रॉपर कंपनी। गल्फ ऑयल इज अ वेरी गुड कंपनी टू वर्क। I can share you a lot of things about the Gulf Oil. But Gulf Oil में जब 97 में ज्वाइन किया तो मेरे को प्रोडक्ट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था एंड मैं क्लियर था कि मेरे को सेल करना एंड आई एम अ कोर हार्डकोर सेल पर्सन। तो मुझे मालूम है सेल करना है अपने को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मार्केट में जाएगा तो ही आएगा, पढ़ाई करके कुछ नहीं आएगा। मैं बोला पढ़ाई करके तो सब ऊपर से चला जाएगा। ओके, सो आई थॉट आई कैन गो टू द मार्केट, आई विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम्स टू द रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैकेनिक्स हमारे लिए डॉक्टर है जिगर भाई। ओके, बिकॉज ही राइट अ प्रिस्क्रिप्शन कि कौन सा ऑयल डालना चाहिए। ओके, इवन ही इज अनएजुकेटेड पर्सन बट ही राइट्स कि भाई ये डालना है, वो डालना है, ये कंपनी का डालना है। सो दैट्स द रीजन मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा मैकेनिक के पास, ओके, रिटेल के पास, बिकॉज आई वॉज अलोन देयर। तो मेरे पास कोई टाइम पास नहीं था। वंस आई ऑफिस खत्म होता था 6 बजे सब जन निकल जाते थे, फिर मैं 6 बजे के बाद वापस मार्केट जाता था। डे में तो 1-2 राउंड मार के आता था, फिर मार्केट जाता था शाम को, फिर 9 साढ़े 9 बजे तक कोई भी रिटेलर के पास 2, 4, 5, 10 लोगों के पास बैठ जाता था और उनसे सीखता था कि लुब्रिकेंट का कंपटीशन कैसा है। एंड आई गॉट अ गुड नॉलेज। इवन माय डिस्ट्रीब्यूटर वाज देयर, दे वर वेरी क्वालिफाइड पीपल। ओके, दे वर हैविंग गुड एक्सपीरियंस ऑफ द बिजनेस एज वेल एज द प्रोडक्ट। तो वो लोग भी मुझे सिखाते थे कि क्या प्रोडक्ट है, कैसा अपन बेच रहे, चैलेंज कैसे एक्सेप्ट करने का। आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन नासिक व्हेन आई वाज इन गल्फ ऑयल ना। तो गल्फ ऑयल में जब हम लोग काम करते थे तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने नासिक में सीखी कि कस्टमर के साथ आप लोग को कैसा बिहेव करना है। और मैंने इतना रिलेशन अच्छा बनाया था क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो तो बहुत स्ट्रांग था। ही वॉज हैविंग द रिलेशन विद द एमडी, ही वॉज हैविंग द रिलेशन विद द सीईओ, एंड उनके साथ काम करना बोले तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर मी बिकॉज ही वॉज वेरी वेल एजुकेटेड था, उसके बाद नॉलेज अच्छा था, मार्केट में नाम था। तो उनके साथ कंपनी का आदमी बोले तो कुछ नहीं थे। फॉर लाइटर साइड इफ यू लुक तो कंपनी का आदमी का उनके पास कुछ नहीं था। अरे यार इससे मेरे हम लोग को ज्यादा आता है, बट वी आर अ प्रिंसिपल। सो आई
पुट अ स्टैंड, आई एम अ प्रिंसिपल एंड तू मेरा स्टूडेंट ही है, वो हिसाब से ही मैं बिहेवियर रखता था मेरा। बट मैंने क्या किया, मैंने उनके पहले जितने भी क्रीम कस्टमर थे वो क्रीम कस्टमर को मेरे फोल्ड में कर दिया। अच्छा, जिसका 60-70% कॉन्ट्रीब्यूशन था उनके बिजनेस का, अगर वो 25 स्केल बिजनेस कर रहा है तो उसमें से 15 से 20 स्केल करने वाले जो कस्टमर थे उनको मैंने मेरे फोल्ड में कर दिया। पहले ही मैंने उन लोग के साथ अच्छा रैपो वगैरह बनाया, इतना रिलेशन बनाया, रात को उनके साथ बैठता था, उठता था, खाना खाने को जाते थे, तो मैं जो बोलता था वही वो लोग करते थे। लाइक दैट रिलेशन आई मेड विद देम। वो जब उनको पता चल गया मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को क्या 60-70% का कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर वॉल्यूम इज नाउ इन क्लेटर्स हैंड, तो जो मैं बोलता था वो सुनते थे। अर्लियर वो लोग ने मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया, बोले ये क्या वैल्यू एडिट करेगा मेरे बिजनेस में। हाँ, तो जैसा मैंने वैल्यू एडिट करना चालू किया डिस्ट्रीब्यूटर के लिए गल्फ ऑयल का, तब उनको पता चला कि नहीं ये बंदे में कुछ तो दम है। देन दे खुल के मेरे से बात करने लगे, मेरे आइडियाज एक्सेप्ट करने लगे, एंड देन वी आर ग्रो। तो वहां पे भी मैंने 5 साल काम किया, 2002 तक मैंने काम किया वहां पे, एंड आई डेवलप गुड रिलेशन। टुडे ऑल्सो most of the retailers, most of the mechanics, they know me by my name across India. Yes. Okay. So नासिक के बाद में फिर महाराष्ट्र इंचार्ज बना, महाराष्ट्र के बाद में वेस्टर्न रीजन का इंचार्ज बना। देन मैंने नॉर्थ गया 2007 में। यूपी में लोगों को लगता था, यूपी में डर लगता था कि कैसे काम करने का। आई वॉज डूइंग फ्रीली वर्क। मैं तो रोज सुबह जाके एक डिस्ट्रीब्यूटर बंद कर देता था अगर वो पैसा नहीं देता था तो। क्लियर कट मैसेज जाता था, ये बिजनेस करना है तो प्रॉपर वे करना है, अदर थिंग्स वी कैन डू, जो भी स्कीम ये जो भी है मैं स्कीम में, बट स्कीम में मैंने कभी काम ही नहीं किया। मैंने प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट के क्वालिटी के ऊपर काम किया। भैया व्हाई यू वांटेड टू सेल गल्फ, व्हाई यू वांटेड टू टेक गल्फ टू द मैकेनिक, बोलता था मैं आपको गल्फ क्यों लेना है, क्यों यूज करना है। तो मैंने क्वालिटी के बारे में ज्यादा बात करता था, टेक्निकली उन लोग को बताता था कि ये ऑयल डालने से आपका भी गैरेज ज्यादा चलेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा नहीं ये यूसुफ भाई है, ये अफजल भाई है, ये क्वालिटी वाला ही प्रोडक्ट यूज कर रहे। तो आपके गैरेज में भी जो कस्टमर आएंगे वो आपको देख के आएंगे, बोले नहीं यार ये हुसैन भाई है, ये कोई अल्ताफ भाई है, ये बराबर काम करता है और अच्छा ऑयल डालता है। तो वो उनको मैं समझाता था। नहीं तो क्या, अरे यार तुम्हारा डब्बा कितने का है, इतने का है, वो इतने में मिल रहा है, वो उतने में मिल रहा है। तो मेरे साथ वो आर्गुमेंट कभी नहीं करते थे, बिकॉज आई वॉज थॉट देम। उन लोग को मैंने ऐसा लर्निंग, ऐसा टीचिंग किया था कि भैया आपको क्वालिटी वाला ऑयल डालना है। अगर आपने बिना क्वालिटी ऑयल डाला तो कोई भी कस्टमर आपके पास वापस नहीं आएगा। तो दैट वाज देयर इन माइंड, एंड दैट्स द रीजन ऑल मैकेनिक्स वाज कन्वर्टेड इनटू माय प्रोडक्ट। दैट इज माय गुड एक्सपीरियंस विद द मैकेनिक। ये ऑलमोस्ट आई कैन से, वो एक कहावत है सर कि 19-20 मैच होता है या पर ये आपका एक्सपीरियंस अपना कैटेगरी ऑफ बिजनेस से वो 19-20 नहीं है, एग्जैक्ट एप्पल टू एप्पल मैच हो रहा है। राइट क्योंकि जैसे आपने बताया आपके जो कस्टमर्स थे वो मैकेनिक्स थे, दैट इज व्हेन आई से, आई कांट से 100% अनएजुकेटेड, बट एक ठीक है एक लेवल तक उतना लेवल का एजुकेशन वेरी एजुकेटेड, करेक्ट। सो इट्स अ मिक्स ऑफ, बट एंड ऑफ द डे वी कंसीडर मैकेनिक एक डिफरेंट लेवल के पब्लिक है। सेम वे अवर वाटरप्रूफिंग के जो कस्टमर्स है आर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो पहला मैचिंग हुआ है, करेक्ट। दूसरा वो आपने बोला वही डॉक्टर है प्रिस्क्राइब करते। यस सेम है वाटरप्रूफिंग में क्लाइंट को कुछ भी नहीं पता है, कौन सा प्रोडक्ट क्या बेस कैसे लगाना, उसका एक ही पर्पज है पानी बंद होना चाहिए। तो उसके लिए डॉक्टर कौन है, कॉन्ट्रैक्टर। तो सेम में आपका मैकेनिक है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर अपना। सो ये दूसरा मैचिंग पॉइंट है। तीसरा, जब आपने बोला ट्रेन करते हैं, दिस वॉज द पॉइंट वेयर एक्चुअली वी स्टार्टेड काबू। एंड जैसे वो कहावत है ना कि बहुत सारी ब्रांड्स है जो धंधे पे फोकस, जो जैसे एक कहावत है कि वो आज रोलेक्स है तो भाई क्या बेचती है, घड़ी। वो घड़ी नहीं बेचती, वो लग्जरी बेचती है। वैसे टेस्ला जो है दैट सेल फ्यूचर नॉट द कार, करेक्ट। नाइकी सेल, आई मीन रेड बुल सेल्स एनर्जी नॉट द ड्रिंक। तो वैसे कहावत है ये सारी। सो वे सेम वे एज अ काबू वी आर फोकसिंग ऑन एजुकेशन, जो what after a long research we have identified, speaking with contractors बोलो या सबसे, but even we talk of real estate owners and developers, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, but multiple people से हमने बात की, and they have zero, I can say, technical knowledge about product and application both in waterproofing. Correct. तो उनको वो जो आप जो समझाते थे उनको
एंड ऑफ द डे सॉल्यूशन काम करता है, प्रोडक्ट नहीं। प्रोडक्ट के बकेट के पीछे, या आपका बकेट जो सस्ता है, सेम हमारे में भी वही है, बकेट का प्राइस क्या है, तो बकेट के अंदर क्या है वो पूछते, अरे वो तो पता ही नहीं है, सस्ता कौन सा है, फिर प्रॉब्लम हुआ। सो दैट इज एग्जैक्टली द सेम आई कैन से लाइन ऑफ एक्शन, कि वो जो प्रोसेस है, वो जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो बहुत बहुत सिमिलर है, कि दैट इज व्हाट वी आर ऑल्सो एड्रेसिंग द प्रॉब्लम कि इन वाटर प्रूफिंग, और उसी को आगे लेके जाके देयर वी कैन सी सम काइंड ऑफ सपोर्ट गिवन टू द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एंड देन देयर इज अ ग्रोथ। आई कैन से ग्रोथ जो होगा वो जॉइंट ग्रोथ होगा, मतलब सोसाइटी का, इंडस्ट्री का, कॉन्ट्रैक्टर का और हमारा, डेफिनेटली। तो वो चीज साथ में मिलके एग्जैक्टली आपने वो किया है, तो दैट विल बी एक्सीलेंट, गुड। मतलब वो चीज और डिटेल में आपका जो इतने सालों का एक्सपीरियंस, दैट ऑल्सो यू कैन टीच द होल टीम एंड वी कैन ग्रो दैट टुगेदर विथ योर मोर ऑफ योर एडवाइस एंड स्टफ। वैसा है। तो 22 के बाद आपका 22 और आप भले महाराष्ट्र और नेशनल यूपी तक, मोस्ट ऑफ द रीजन आई हैव कंप्लीटेड इन गल्फ ऑयल। एज अ सेल्स आई वर्क इन नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, but I have relation with the southern region as well as eastern region, because after this thing in 2015-16 I came to the corporate. So in corporate I was doing the distributor management, distributor development job, then I done the market development job, and recently on 4th of March only I retired. Okay, so I cannot say it's a retire, but my new journey is now started. Yeah. It's a retirement is not a end. It's a new beginning. सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अभी न्यू कुछ ऐसा सुनने में आया लॉ है कि there is no retirement till your last breath. Correct. So it's a new journey. It's new beginning, you can say. Okay, so then I have done a lot of other things also, because my specialty as having the good PR, public relations with each and every external customer, internal customer. Always I as a smiley guy, you can say. Okay, so market development आपने बताया, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में। So market development में we were discussing with our regional head कि what is his weak area, where is we are getting a negative growth. Suppose we have the SKUs of 300 and more than 300. So we have the category wise sales, we have the segment wise sale. We in the lubricant they have the PCMO, MCO, motorcycle का oil है, कार का oil है, truck का oil है, tractor का oil है. So that is we have the category. Then we have the segment also. So then in the customer category also we have retailers, we have GRS, that is rural stockists. Then we have bike stop, car stop, उन्नति customer who was doing good with us. So they call we उन्नति customer. So उसका पूरा हम लोग स्टडी करते थे कि भाई अपन कहाँ पे वीक है। अगर मेरे को महाराष्ट्र स्टेट में ग्रो करना है तो वेयर वी आर वीक, कॉम्पिटिटर्स के डेटा लेते थे कि कॉम्पिटिटर्स कहाँ स्ट्रांग है एंड वेयर वी आर वीक, व्हाट इज आवर इंप्रूवमेंट एरिया, कौन से सेगमेंट में हमारा इंप्रूवमेंट। सो अकॉर्डिंगली दैट वी डू द लोकल बूस्टर्स और लोकल प्रमोशंस वेयर वी कैन डू। सो बिकॉज जहां पे हम लोग को मैकेनिक सपोर्ट नहीं करते थे वहां पे रिटेलर सपोर्ट करता, लेकिन मैकेनिक सपोर्ट नहीं करता था, तो देन वी डू द कस्टमर अवेयरनेस। कस्टमर अवेयरनेस कैंप लेते थे हम लोग, उन लोग को बुलाते थे, उन लोग को बताते थे कि भाई तुम्हारा गाड़ी इतना महंगा वाला है, तुम्हारा जेसीबी है इतना बड़ा वैल्यू वाइज है। ओके, सो यू हैव टू पुट अ प्रॉपर रिकमेंडेड लुब्रिकेंट ओनली। अभी आप गाड़ी छोड़ देते, एंड यूजर तक चले, एंड यूजर तक हम लोग डिस्कशन करते थे। यस, क्योंकि जब ये डॉक्टर सुन नहीं रहा है, हाँ डॉक्टर का कैसा है, डॉक्टर का उधर वहां पे जो प्रमोशन चल रहा था उसमें कोई लगा हुआ है, डॉक्टर अपना भी देख रहा था, तो उसमें कैसे रहना, देयर इज चेन, माय डिस्ट्रीब्यूटर, देन माय डीलर, देन माय मैकेनिक एज अ कंज्यूमर, जो कंज्यूम कर रहा है, और जो पैसा दे के ऑयल ले रहा है एंड यूजर, दैट इज एंड यूजर। तो हम लोग एंड यूजर तक पहुंचे। तो जब हम डीप में जाने लगे तब हमको पता चलेगा कहाँ पे गैप है। कहीं पे हम लोग को रिटेलर अच्छा, पर रिटेलर को हम लोग क्या करते थे ना, हमारा एक वाव करके ट्रेनिंग है जिसका भी मैं इंचार्ज हूँ, वाव करके ट्रेनिंग है जो वे ऑफ वर्किंग, वेज ऑफ वर्किंग जिसको हम बोलते हैं। तो वेज ऑफ वर्किंग में हम लोग सिखाते हैं ऑल डीएसएस को, डिस्ट्रीब्यूटर के, क्योंकि ही इज अ फेस टू द मार्केट कस्टमर। ओके, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी ही इज अ फेस। तो उनको हम लोग अच्छी तरह से सिखाते हैं तुम्हारा अटायर क्या रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए,
how you can start your conversation with the customer, एंड में आपको क्या बोलना है, मिडल में आपको क्या बोलना है, वो हम लोग पूरा सिखाते हैं उन लोग को. हाउ टू स्पीक विद द पीपल, हाउ टू वेट. आप अगर जाते हैं शॉप में तो अपने अगर डब्बे पीछे है तो उसको आगे लाओ, सेल्फ में लाओ, आगे लाओ, थोड़ा उसको पोंछ बीछ के रख दो ऐसा अच्छा सा, अगर मिट्टी लगी हो तो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा यार ये मेरे प्रोडक्ट का ख्याल रख रहा है. हाँ. जो रिटेलर है वहां पे वो देखेगा यार ये सेल्स वाला आता है ना, वो मेरे प्रोडक्ट का ख्याल रख रहा है. मतलब गर्ल का प्रोडक्ट वो पीछे रहेगा तो आगे करता है बेचने के लिए. तो लाइक दैट वी डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मार्केट डेवलपमेंट. हम लोग कैंपेनिंग करते थे, रोड शोज करते थे, सो मेनी एक्टिविटीज हम लोग करते थे. तो वो हिसाब से क्या होता था ना, क्या वी आर लाइव इन द मार्केट. ऐसा नहीं बोल सकता यार गर्ल को हम पहचानते नहीं, बोले प्रोडक्ट वाइज हम लोग नहीं, बट गर्ल को कोई पहचानता नहीं, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है. ओके, सो वी ऑलवेज लाइव. If you look as a marketing part, ATL, BTL, we are fantastic. ATL, we are doing fantastic. We are the brand ambassador, Dhoni. You people are aware. So, we are doing good in IPL also. We have a lot of sport-related contracts. We have a lot of JVs with the sports people. So, that's where we are not only selling the lubricant, but we are giving the solution for lubricant. तुम्हारी गाड़ी का सोल्यूशन दे रहे भैया, तेरे को पिकअप नहीं मिल रहा है, ये मेरा प्रोडक्ट है. ओके, तेरे को माइलेज नहीं मिल रहा है, ये मेरा प्रोडक्ट डाल दो. सो यू विल गेट बेनिफिट. सो पेन पॉइंट को एड्रेस करके कस्टमर्स पेन पॉइंट, उसका सोल्यूशन देना इज मोर इम्पोर्टेंट विद द प्रोडक्ट रादर जस्ट फोकसिंग ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट. करेक्ट. भाई ये मेरा शाम तक बिकना चाहिए, वो ऐसा नहीं. मतलब सामने वाले को अगर प्रॉपर रिक्वायरमेंट है तभी वो लेगा. ऐसे ही बेच बेच के तो बिकने वाला है नहीं प्रोडक्ट. So that was more important. Same exactly we also looking at. Second, I heard that of course ATL, BTL. Now coming to the advertising part of it, आपने इतना experience किया है, आपने बोला you are very good in company as in ATL में, BTL में. धोनी I guess is your Gulf Oil का brand ambassador. So of course we are also looking forward with your experience in terms of advertising and brand building of Kabu. Definitely. Of course we will also be looking for a good brand ambassador. हमारा brand ambassador तो एक mascot अपना already I saw that. But surprise would be will also as an उसका character अगर आप देखोगे तो I guess we have not revealed yet, but in future we will be revealing that character. कोई तो similar बॉलीवुड पर्सनालिटी जैसा सेम दिख रहा है. आई गेस वी विल नॉट रिवील इन दिस वीडियो, बट जब उसको थोड़ा और टाइम डेफिनेटली तो ऑडियंस के लिए वो एक तो लेट ऑडियंस थिंक तब तक के वो कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है बॉलीवुड पर्सनालिटी. सो दैट इज काबू. तो उसका प्लानिंग अभी से किया है हमने टू बिल्ड अप विद दैट कैरेक्टर एंड टॉकिंग विद द इंटरेक्टिंग विद द पीपल एंड ऑल. सो पुटिंग थिंग्स ऑल टुगेदर, आई गेस द लास्ट आई कैन से welcome again back, and we are looking really forward to grow with your support, with your advice, with your experience, with your training, everything together, and looking forward to grow Kabu at I mean to become a unicorn again faster as much as you can with your experience. Definitely. So it was the basic अपना ये interview जो था and episode 5th था ये हमारा, तो जिसमें हमारा एक्चुअली ये सीरीज चल रहा है कि जो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटरप्रूफिंग, वेयर वी एक्चुअली इंटरव्यू कॉन्ट्रैक्टर्स है, रियल एस्टेट ओनर्स है, कंज्यूमर्स है, उनका हम इंटरव्यूज लेते हैं. ये इंटरव्यू में अंदर हम पॉडकास्ट सीरीज में ये उनको सवाल पूछते हैं ज्यादा करके कि व्हाट दे नो अबाउट वाटरप्रूफिंग, रादर देन उससे ज्यादा ये सवाल भी होते हैं कि मतलब आज तक उन्होंने किस प्रकार के प्रॉब्लम्स एड्रेस किए, फेस किए. करेक्ट. सो वो जो प्रॉब्लम्स फेस किए और आप यू वोंट बिलीव 90% 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर कॉमन. तो जब वो कॉमन प्रॉब्लम निकलता है ना सब किसी का, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मार्केट. सबका प्रॉब्लम अलग अलग है तो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ इंडिविजुअल प्रॉब्लम, बट व्हेन देयर इज 90% ऑफ द पीपल्स प्रॉब्लम इज सेम, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉमन मार्केट प्रॉब्लम. सो वी आर एड्रेसिंग दैट मार्केट प्रॉब्लम थ्रू दिस एपिसोड्स. And उसमें ये 5th episode, I guess we felt to also share with our viewers that you have joined the board and with your experience अभी काबू कैसे आगे बढ़ेगा. So that was really nice. So thank you and thanks for watching, and we'll be back with the 6th episode with some good knowledge and a new guest.